So, a very warm good morning to all of you. Our today's topic is what are the rules for defining or in type of arguments in Python? Means how can we have how can we call the functions if we have all the three types of arguments? Three types of arguments means what? We have actually four types of argument in Python functions. Okay, what positional, then default parameter, then keyword, then variable length. In your syllabus variable length is not there, but because of knowledge I have given that one. So positional, default, keyword. But before that one we are learning a very small topic. The name of that topic is what? Scope of variable. Scope of variable, and that is so important from the aspects of class 12th. Okay, why this is important? Because sometimes they are asking find the output of the following program code. So if you know the scope of the variables or what kind of scopes are there, then definitely you can solve that problem. Otherwise you are facing some problems. Okay, so scope of variables. Okay, so definitely there are two scopes. Okay, there are two scopes. One is what? Global. Sorry, one is what? Global, and other one is what? Local scope. Other one is what? Local scope. Other one is what? Local. The type local scope. Okay, so what do you mean by global scope? What do you mean by local scope? See, a name declared in the top level segment. Name declared in the top level segment. Top level segment means what? Suppose if I'm writing example, for an example, if I'm typing a program here itself, suppose a equal to, then I'm typing, then b equal to what? 20, then I'm typing c equal to 30. Suppose I'm making that program, write a program to find the greatest among three number. So the thing which are the name variable which are the toppest level at the top of the program, all those variables are in global scope. Means the name declare in the top level segment. That is what? Which segment? That is main segment. Okay, main segment. Main segment. Okay, main segment of a program is said to have what? Global scope. मतलब जितने भी ऐसे सारे प्रोग्राम, जितने भी सारे वेरिएबल्स आप जिनको ग्लोबल स्कोप में डिक्लेयर अगर किए हो, मतलब प्रोग्राम के टॉप पे, किसी भी फंक्शन के अंदर नहीं, एकदम टॉप पे लेफ्ट वाले आइडेंटिफिकेशन के पास आप जितने भी प्रोग्राम, जितने भी वेरिएबल डिक्लेयर किए हो, वो सारे के सारे usable inside the whole program, and all blocks, function and other blocks contained in that particular program. मतलब अगर सपोज मैं कोई प्रो बना रहा हूं, सपोज मैं यहाँ पे करने के बाद एक फंक्शन मैंने प्रिपेयर किया, जस्ट फॉर एन एग्जांपल डेफ मैंने लिखा. ओके, एक मिनट. डेफ मैंने लिखा, डेफ के बाद सपोज मैं एक फंक्शन बनाया. ठीक है, मैक्स, मैक्स नाम का मैंने फंक्शन प्रिपेयर किया. ओके, अब इसके बाद मैं जो आइडेंटिफिकेशन रहेगा वो ये आइडेंटिफिकेशन रहेगा ना, ये वाला. इसके इधर जितना भी लिखे हैं, ऑल दोज वेरिएबल्स आर इन ग्लोबल स्कोप. मतलब आप इन ए बी सी इन सबको कहीं भी यूज कर सकते हैं पूरे प्रोग्राम में. ओके, किसी भी फंक्शन के अंदर भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. ओके, द द अदर वन स्कोप इज नोन एज व्हाट? लोकल स्कोप. तो लोकल स्कोप का क्या रहता है? अ नेम डिक्लेयर्ड इन अ फंक्शन बॉडी. अ नेम डिक्लेयर्ड इन अ फंक्शन बॉडी. मतलब फंक्शन बॉडी के मतलब यहाँ पे सपोज मैं कोई थर्ड वेरिएबल ले रहा हूं जिसका नाम है आर ई एक्स. ठीक है, और सपोज इसमें मैं इनका सबका एडिशन निकाल करके ऐड कर दे रहा हूँ. ठीक है, ओके. सो यहाँ पे जो आर ई एस है, दिस वेरिएबल इज व्हाट? हैविंग लोकल स्कोप. मतलब इस वेरिएबल को आप इस मैक्स फंक्शन के अंदर ही यूज कर सकते हैं. मैक्स फंक्शन के बाहर यू आर नॉट एबल टू यूज दैट वन. ओके, क्लियर है? समझ में आया? चलो अब इसका एक प्रोग्राम बनाते हैं, सो दैट वी कैन क्लियर ऑल द थिंग्स. ओके, क्लियर ऑल द डाउट्स. यस, नाउ सी, जस्ट आपसे आपको सिर्फ देखना है और कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं सारा चीज एक्सप्लेन कर दूंगा. Now see, let's suppose we have one variable called a equal to what? 30. A equal to 30. Okay, then suppose we are having function def function क्या ले ले? Change ले लेते. Change function change. Okay, then
we are having one more function. We are having what? One more function. That function name is what? Again what? A. And we are changing the value of this one. Okay, they let it be what? 50. Yes. Now see, I want to print value. I want to print, like, see, in function, okay, inside the function value of A. Okay, I need this code, so I just copy paste it, because I am not willingly want to type. Now see, now I want to print outside. Okay, I want to just print outside. Yes, see, this A and this A. Is it possible that we can create the two variables with the same name in a program? Yes, of course, that is possible. If you are having different scope, if you are having different blocks, you can create it, no problem. Definitely it is going to be run smoothly, no problem. But what output will come? Okay, what output will come? Definitely, see, here I am declaring A equal to 30, and then I am changing the value of is what? 30 to 50. Okay, so suppose what output will come? In fun 30, सॉरी, इसको करना था आउट फन, आउट फन. नाउ सी, अब क्या आ रहा है देखते हैं. आउट फन आ रहा है. नाउ सी, इन फंक्शन इज नॉट गोइंग टू एग्जीक्यूट. व्हाई? बिकॉज वी हैव नॉट कॉल्ड योर चेंज फंक्शन. अगर इफ यू वांट टू दैट योर चेंज फंक्शन शुड एग्जीक्यूटेड, यू हैव टू कॉल इट. हाउ कैन वी कॉल? सिंपली change the indentation level, come to that indentation level, इस level पे आ जाओ, then just type the name of the function. Okay, now see, in 50 and out 30 means what? Here A equal to what? 50, और in function में क्या आ रहा है? 50 ही आ रहा है, और out function में क्या आ रहा है? 30 आ रहा है. Again big challenging task for us. यार कैसे हो रहा है भैया? वेरिएबल तो एक ही है, यहाँ वेरिएबल एक नहीं है, यहाँ पे दो वेरिएबल है. कैसे? Here this A is known as what? Your global. What? Global variable. और इसका स्कोप कैसा है? ग्लोबल. एंड हियर दिस ए इज नोन एज व्हाट? योर लोकल. ओके, अब इसका रूल क्या बोलता है? इसका रूल ये बोलता है कि सपोज सबसे पहले अगर यहाँ पे इसको आप इसको प्रिंट कर रहे हो, प्रिंट करने के लिए क्या वेरिएबल होना चाहिए? तो आप एक्चुअल में क्या करो, यहाँ पे इसको चेंज करो तो क्या करेगा? सबसे पहले ये अपने स्कोप में देखेगा, अपने लोकल में देखेगा, क्या मेरे पास ए नाम का कोई फंक्शन, ए नाम का कोई वेरिएबल है क्या? अगर उसको ए नाम का वेरिएबल मिल गया तो वो उसकी वैल्यू प्रिंट कर देगा. तो वही चीज यहाँ पे हो रही है. सबसे पहले क्या हुआ? चेंज फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ. ठीक है, अगर किसी को डाउट है चेंज फंक्शन नहीं एग्जीक्यूट हो रहा है तो एक काम करते हैं, उसके पहले अपन लिख देते हैं प्रिंट, आपको समझ में आ जाएगा. प्रिंट डबल कोट्स के अंदर ले लो, हाई प्रिंट करते हैं. लेट्स सी, सबसे पहले हाई प्रिंट हुआ, मतलब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट कहां से हो रहा है? प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो रहा है यहां से. दिस इज योर स्टार्ट. ओके, यहां से स्टार्ट हो रहा है. पहले ये एग्जीक्यूट हुआ, फिर चेंज फंक्शन. यहां से कहा गया कंट्रोल? डायरेक्ट यहां पे गया. चेंज फंक्शन में इक्वल टू 50 एक नया वेरिएबल क्रिएट हुआ. ओके, ये तो ए तो है ही, ये ग्लोबल स्कोप में है. ओके, ये वाला ग्लोबल स्कोप में और ये वाला लोकल स्कोप में. तो यहाँ पे दो डिफरेंट वेरिएबल क्रिएट हुए, एक ग्लोबल स्कोप में क्रिएट हुआ, दूसरा लोकल स्कोप में. अब रूल क्या बोलता है? अगर सपोज आप किसी फंक्शन के अंदर किसी वेरिएबल का नाम अगर देख रहे हैं तो सबसे पहले वो अपने फंक्शन के अंदर चेक करेगा, क्या मेरे फंक्शन में ए नाम का कोई वेरिएबल है क्या? अगर है तो वो उसकी वैल्यू प्रिंट कर देगा. आया समझ में? इसलिए क्या प्रिंट हुआ यहाँ पे? इन फंक्शन 50. देखो ये वाला स्टेटमेंट, इन फंक्शन दैट इज 50 प्रिंट हो रहा है. और उसके बाद प्रिंट आउट फंक्शन, तो यहाँ पे क्या है? इक्वल टू 30. तो इस 30 की वैल्यू तो चेंज ही नहीं हुई है, इसलिए क्या प्रिंट हुआ? 30. आ रहा है समझ में? क्लियर है? अब एक काम करते हैं, अपन क्या करते हैं, ये वाला वेरिएबल यहां से हटा ही देते हैं, ये वाला वेरिएबल यहां से हटा ही देते हैं. चलो इसको हटा देते हैं. अब क्या है, मेरा प्रोग्राम ऐसा है कि मेरे पास तो लोकल फंक्शन है ही नहीं. उस केस में क्या होगा? तो उस केस में क्या होगा देखते हैं. उस केस में क्या होगा? उस केस में होगा ये, सॉरी 1 सेकेंड. यस, उस केस में देखो मेरे पास तो एक ही वेरिएबल है ए, दैट टू ग्लोबल है. तो यहां पे भी 30 प्रिंट होगा और यहां पे भी 30 प्रिंट होगा. सी देखो,
हाई इन फंक्शन 30 एंड आउट फंक्शन 30, दोनों में 30 प्रिंट हो रहा है। बट सपोज मैं चाहता हूं कि मेरे फंक्शन में दोनों वेरिएबल एक्सेस हो, तो उसको कैसे करेंगे? उसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा ग्लोबल। ओके, ग्लोबल ए डिक्लेयर किए अपन, ठीक है, और फिर ए की वैल्यू यहां पे चेंज कर दी, 30 की जगह क्या किया 50। ओके, क्लियर? तो सबसे पहले स्टार्ट, यहां पे हाई प्रिंट होगा, हाई के बाद चेंज फंक्शन में गया, यहां पे गया, और ये जो ग्लोबल ए बोलने से क्या होगा, अब ग्लोबल ए बोलने से क्या होगा, ये वाला जो ए है ये लोकल ए को एक्सेस नहीं करेगा, ये ग्लोबल को एक्सेस करेगा, मतलब ये वाला। तो क्या हो जाएगा, ए की जो वैल्यू क्या थी 30 थी, ए की जो वैल्यू क्या थी वही 30 थी, सॉरी, यस, हाँ, ये जो था यहां पे, अब क्या हो जाएगा, यहां पे एक नया वेरिएबल क्रिएट हुआ, ओके, जिसका नाम क्या है आपका, जिसका नाम है क्या, ए सी, जिसका नाम क्या है ए, ओके, और यहां पे एक और वेरिएबल क्रिएट होगा आपका, जिसका भी नाम क्या होगा ए, ओके, जिसका भी नाम क्या होगा ए, यहाँ पे ए लिख लेते हैं। अब ये वाला ए जो है वो ये वाला ए है, ठीक है, ये ग्लोबल वाला है, और ये वाला ए जो था, ये ग्लोबल अगर नहीं लिखे रहे यहाँ पे तो ये वाला ए है, ठीक है। अगर सपोज यहाँ पे ग्लोबल नहीं लिखा है तब की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, ग्लोबल को हटाने का जुगाड़ लगाना पड़ेगा, हट बाबा, ठीक है, सपोज सिर्फ ए लिखा है, सिर्फ ए लिखा है, तो ये वाला है, ठीक है। तो इनिशियल में क्या होगा, यहाँ पे क्या असाइन होगा, इनिशियल में 30, ये कौन सा वाला है आपका, ये ग्लोबल वाला है, याद रखिएगा ये ग्लोबल है, ठीक है, और ये क्या है, लोकल स्कोप है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसमें 50 असाइन हुआ, तो जब अपन इस फंक्शन के अंदर है यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, ये वाली ए की वैल्यू प्रिंट करेगा, इसलिए क्या प्रिंट हो रहा था, इन फंक्शन क्या प्रिंट हो रहा था 50, यस। और जब यहाँ पे आउट फंक्शन हो रहा है तो आउट फंक्शन ये ग्लोबल स्कोप में, इसलिए ये वाली प्रिंट किया, ठीक है। लेकिन जैसे ही क्या होता है, जैसे ही क्या होता है, ग्लोबल स्कोप आ जाता है आपका, जैसे ही आपका ग्लोबल आ जाता है तो एक नया मेमोरी लोकेशन इज नॉट गोइंग टू बी क्रिएट, एक नया मेमोरी नहीं क्रिएट होगा। अब क्या होगा, ये क्या करेगा, इनिशियल में क्या होगा 30 असाइन हुआ बिकॉज ऑफ योर दिस स्टेटमेंट। नाउ आपने फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, सॉरी ये वाला स्टेटमेंट पहला एग्जीक्यूट हुआ, अब सेकंड एग्जीक्यूट ये हुआ, ठीक है। सेकंड के बाद डायरेक्ट फंक्शन कहां गया, यहां गया, यहां से क्या हुआ, अपन ने बोला ग्लोबल है, तो अब क्या होगा, ये वाला ये ए नहीं क्रिएट होगा, अब क्या होगा, ये वाला ए, अब ये जो 50 होगा ये 30 को काटे, और क्या लिखो यहाँ पे अब लिखो 50। आया समझ में? अरे यार होना कैसे हो रहा है, ये हो गया 50, ठीक है, माउस से कर रहा हूँ, लाइट पेन नहीं है मेरे पास, ठीक है, क्लियर। अब यहां पे आया तो देखो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, इन फंक्शन, तो सबसे पहले क्या प्रिंट होगा आपका इन, और उसके बाद fun, इन फंक्शन क्या है वैल्यू 30 नहीं है ना, 50 है, इसलिए क्या प्रिंट हुआ 50, और उसके बाद आउट फंक्शन, ओके, उसके बाद क्या प्रिंट हुआ, आउट फंक्शन, क्या प्रिंट हुआ 50 50। आई थिंक क्लियर होगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये था ग्लोबल स्कोप। अब सपोज मैं चाहता हूं कि नहीं यार मेरा दोनों एक्सेस हो मेरा, तो लेकिन अब जो बताने वाला वो आपके सिलेबस में ही नहीं है, सिलेबस में है ही नहीं, लेकिन फिर भी एक छोटा सा एक तरीका बता देता हूँ कैसे करते हैं उसको एक्सेस। छोड़ो सिलेबस में नहीं तो क्यों बताऊं, बताना है बोलो, बताना है तो बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा, बता दो। हाँ सर। बता दूं, चलो बता देता हूं। सी, अभी देखो, अगर मेरे पास, ठीक है, मैं चाहता हूं कि मेरे पास ग्लोबल वेरिएबल भी रहे और लोकल वेरिएबल रहे, दैट टू, मतलब ऐसा तो क्या पॉसिबल है क्या, तो पॉसिबल तो नहीं है, जनरली मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, हो सकता है लेकिन थोड़ा सा प्रोग्रामिंग के एथिक्स के हिसाब से वो गलत है। अब उसको लेकिन अपन उनको एक्सेस करना तो करे कैसे, सबसे पहला चीज देखो, मेरे पास एक फंक्शन है पाइथन में, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा इस फंक्शन को, उसका नाम है ग्लोबल्स। ग्लोबल्स फंक्शन क्या करता है, वो इस प्रोग्राम में जितने भी ग्लोबल वेरिएबल है सबका आईडी प्रिंट कर देगा। आया समझ में कैसे करें उसको, उसको करने का तरीका ये देखो। अब यहां पे मैं चाह रहा हूं ग्लोबल वाला कॉन्सेप्ट में हटा देता हूं, ग्लोबल मेरे पास है ही नहीं, ठीक है, ग्लोबल का कॉन्सेप्ट मैंने हटा दिया, ये लिए, ये तो गलत आइडेंटिफिकेशन लेवल में ये रहा, ये रहा। तो अब क्या करते हैं अपन, a इक्वल टू, मैंने एक वेरिएबल, सॉरी ये नहीं, हाँ ये था, ये देखो, ठीक है। अब
अगर मैं ए का एड्रेस ले सकूं तो मेरे पास पॉसिबल है ये सब। तो कैसे लेंगे? लेट इट बी x इक्वल टू, फंक्शन का नाम है ग्लोबल्स, ग्लोबल्स, ओके, ग्लोबल्स ऐसे, ग्लोबल्स। और अब क्योंकि मेरे प्रोग्राम में एक ही ग्लोबल है और मेरे को क्या करना है, इसका वैल्यू प्रिंट करना है। सिंपल, ये सब नहीं चाहिए मेरे को अभी, मेरे को सिर्फ आईडी से मतलब है, दैट्स इट। तो प्रोग्राम हो जाएगा अपना चेंज। ये हुआ। अब क्या करूंगा, सिर्फ मैं प्रिंट एक्स की वैल्यू प्रिंट कर दूंगा, ठीक है, प्रिंट एक्स, ओके, व्हाट आईडी इक्वल टू, आईडी इक्वल टू, आईडी की वैल्यू प्रिंट हुई यहां पे, क्लियर है। अब अगर, और एक और काम ये करता हूं, मैं बाहर पे भी सेम आईडी प्रिंट करता हूं, ठीक है, बाहर पे भी सेम आईडी प्रिंट करता हूं। प्रिंट कैसे प्रिंट करेंगे, प्रिंट, मैंने आपको एक फंक्शन बताया था, याद करो, आईडी फंक्शन, प्रिंट आईडी ऑफ ए, ठीक है। अगर दोनों जगह आईडी सेम प्रिंट हुई, मतलब मैं ए को एक्सेस कर सकता हूं। गड़बड़ आ रहा है, 1 मिनट। अब यस, ठीक, आईडी 30 आ जा रहा है, डायरेक्ट एड्रेस एक्सेस हो जा रहा है इसका। डायरेक्ट एक्सेस हो जा रहा है उसका एड्रेस, यहाँ पे आईडी ये है, एक मिनट, हाँ, इसका अगर मैं आईडी प्रिंट कर लूं, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे लगा के देख लेते हैं। देखो दोनों जगह सेम आईडी प्रिंट हो रहा है, देखो लास्ट में देखो 7200 मतलब यस आई एम एबल टू एक्सेस द आईडी। अगर मैं आईडी एक्सेस कर सकता हूं तो डेफिनेटली मैं वैल्यू भी चेंज कर सकता हूं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल सा लॉजिक, देखो मैं आपको बता रहा हूं। यहां था अपना प्रोग्राम, ठीक है। अब मैं चाहता हूं मैं बिना ग्लोबल कीवर्ड यूज किए मैं डायरेक्टली चेंज करूं। तो उसके लिए मेरे क्लास में ये वाला क्या है, मेरा ये वाला लोकल वेरिएबल है, ठीक है, ये मेरा लोकल वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल है। अब लोकल वेरिएबल का क्या करना है मेरे को, एक्स में वैल्यू चेंज करना है। तो क्या करूंगा मैं, देखो अब मैं चाहता हूं कि ऊपर वाले की वैल्यू चेंज हो, इस वाले की, ठीक है, इस वाले की वैल्यू चेंज हो। तो कैसे लिखेंगे, ग्लोबल्स, ग्लोबल्स पैरेंथेसिस, अब उस वेरिएबल का नाम, तो कौन सा वेरिएबल है भैया, ए, ठीक है। इसमें क्या वैल्यू डालना है आपको, इसमें मेरे को डालना है 70, ठीक है, इसकी वैल्यू चेंज करना है मेरे को 70, ठीक है। अब ये है ए, क्लियर। चलो अब करते हैं इसको कॉल। कहां पे आ रहा है, आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम हो रहा है, कहां पे, ये, यस, देखो इनसाइड द फंक्शन क्या प्रिंट हुआ, ये वाला वैल्यू 50, ये देखो इन फंक्शन 50 प्रिंट हो रहा है यहाँ पे, और आउट फंक्शन में क्या प्रिंट हो रहा है, 70। तो देखो इनिशियल में वैल्यू 30 है। एक और चीज देखो, चेंज फंक्शन के बाद में कॉल कर रहा हूं इसको, ठीक है, प्रिंट ए का वैल्यू प्रिंट कर रहा हूं, ठीक है, और यहां पे मैं लिख देता हूं बिफोर, बिफोर कॉलिंग, बिफोर कॉलिंग फंक्शन, कॉलिंग फंक्शन, ठीक है, ये रहा। अब एक और बार देखिए, अरे यार कॉमा तो लगाया हूं, कॉमा तो लगाया हूं, यस। देखो बिफोर कॉलिंग क्या दिखा रहा है, 30, देखो हाई हुआ एग्जीक्यूट, हाई के बाद क्या दिखा रहा है, बिफोर कॉलिंग 30, मतलब इनिशियल में 30 है। मैंने चेंज फंक्शन कॉल किया, एक लोकल वेरिएबल क्रिएट हुआ ए अलग मेमोरी लोकेशन में, उसकी वैल्यू क्या प्रिंट हुई, इन फंक्शन में देखो 50 प्रिंट हुई,
और फिर बाहर इस 30 की वैल्यू क्या हो गई 70। मतलब यूजिंग दिस प्रोग्राम आई एम एबल टू एक्सेस व्हाट बोथ। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में? यस सर। ठीक है, हालांकि इससे प्रो क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है, दैट इज माय गारंटी, नहीं आएगा इससे क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन जस्ट फॉर नॉलेज सेक मैंने आपको तो बता दिया, ठीक है। एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड कहाँ है, वर्ड 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 कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा। वन मिनट, तुम लोग को नोट्स भेजना है करके ना, मेरे को नोट डाउन करना पड़ता है। आज डेट क्या है? आज डेट है कितना? 18 अगस्त। ठीक, चलो अपन अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से लोकल स्कोप ग्लोबल स्कोप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जो अपना बैंकिंग मैनेजमेंट का जो था उसको करते कंप्लीट। देखो, बैंकिंग मैनेजमेंट में 3 फंक्शन है, डिपॉजिट, विड्रॉल और अमाउंट डिस्प्ले करना, ठीक है। तो सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं बैलेंस नाम का, जो ग्लोबल हो, ठीक है। क्या हो? ग्लोबल। इनिशियली बैलेंस, सपोज इनिशियल बैलेंस है 5000 मान लो अकाउंट खुलाते समय, ठीक है। अब एक फंक्शन बना लो डेफ, ठीक है, डिपॉजिट, डीपीओ से डिपॉजिट, पूरा नहीं लिखता मैं। अब डिपॉजिट करते समय मेरे को क्या करना है, अमाउंट बताना पड़ेगा, अभी कितना अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हो आप। तो यहाँ पे वो एएमटी डाल दो कोलन, ये क्या करेगा। अब देखो यहाँ पे फिर प्रॉब्लम होगा, आप अगर यहाँ पे फिर से लोगे बैलेंस को ना, तो वो लोकल वेरिएबल क्रिएट करेगा और आप लोकल वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं कर पाओगे। तो क्या करना है मेरे को, सेम वेरिएबल को एक्सेस करना है, तो क्या लिखूंगा मैं, ग्लोबल, ग्लोबल बीएल बस लिखो और फिर चालू हो जाओ, बीएल प्लस इक्वल टू क्या, एएमटी, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन में आ जाओ, डेफ, सॉरी, अगर आपको इसके बाद इसको प्रिंट करना है या रिटर्न करना है तो रिटर्न भी कर सकते हो, रिटर्न बैलेंस, ठीक। इसके बाद डेफ विड्रॉल, ठीक है। शॉर्ट फंक्शन में नाम लिख रहा हूं मैं एएमटी, क्योंकि कॉलिंग करने में दिक्कत नहीं होगा। हाँ, यहां पे भी लिखना पड़ेगा आपको ग्लोबल, ग्लोबल बीएल, नेक्स्ट बीएल माइनस इक्वल टू एएमटी, ठीक। और रिटर्न, रिटर्न क्या आएगा, बैलेंस, ठीक है, ये हुआ। और डेफ क्या होता है, बैलेंस शो करने के लिए कोई एक फंक्शन, शो, शो बैलेंस या शो बस, ठीक है। ये क्या करेगा, RETURN, रिटर्न बैलेंस, खत्म। देखो ये हो गया, खत्म हो गया अपना पूरा प्रोग्राम। लेकिन अब सपोज अब अपन मेन एरिया में आ गए, प्रिंट लिखे, डिस्प्ले कर लीजिए। इसको थोड़ा सा साइड में ढकेल देते हैं ज्यादा स्पेस मिल जाएगा अपन को प्रोग्रामिंग के लिए। यस, सॉरी, प्रिंट क्या, बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक। ठीक, ये हुआ बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम। अब डिपॉजिट करना है, तो मैंने आपको डिपॉजिट करना है, तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, प्रिंट, ठीक है। इनिशियल में अपन इसको ना हाइड करते हैं, बाद में अपन रिटर्न करेंगे, ठीक है। अब इसे प्रिंट से काम चलाते हैं, ठीक है, ये रहा। अब यहाँ पे प्रिंट कर दो, प्रिंट डिपॉजिटेड अमाउंट इक्वल टू, ये हुआ।
या सिंपली यार ठीक है, इसी को रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बैलेंस हो रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू निकल जाएगा, रिटर्न करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो सिंपल से कुछ नहीं करना है, अब अपन को बस फंक्शन को कॉल करते जाना है। ये हुआ। अब सपोज आपको डिपॉजिट करना है, तो डीपी को कॉल करो, आपको 2000 रुपीज डिपॉजिट करने, तो डिपॉजिट कर दिए, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको प्रिंट करना है बैलेंस को, तो कितना बैलेंस, बैलेंस कितना आया उसको अगर आपको डिस्प्ले करना है तो कैसे करोगे, इसको इस फंक्शन को कॉल कर दो, शो फंक्शन को, शो, ठीक, क्लियर। इसको रन करते हैं। देखो बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम आया। अब यहाँ पे 2000, चूंकि देखो क्यों कुछ नहीं आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्यों कुछ नहीं आ रहा है। चूंकि यहाँ पे शो फंक्शन में क्या लिखा है, सिर्फ रिटर्न कीवर्ड है, प्रिंट स्टेटमेंट कहीं नहीं लिखा है, तो आउटपुट कैसे आएगा। तो इस रिटर्न की जगह क्या कर लेते हैं अपन, प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है, प्रिंट, ये रहा। अब रन करो, तो देखो 7000 आया बैलेंस, है कि नहीं। अब विड्रॉल कर लो, तो विड्रॉल के लिए कैसे कर रहा, क्या फंक्शन का नाम है, विड, 3000 रुपया विड्रॉल कर लो, ठीक है। और उसके बाद फिर शो फंक्शन को कॉल कर लो, तो देखो ये हुआ। अब अगर मान लो आपको यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले करना है, यहाँ पे आपको मैसेज डिस्प्ले करना है, तो कैसे करेंगे यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे प्रिंट डिपॉजिटेड अमाउंट, कितना है डिपॉजिटेड मना अमाउंट, तो वो यहाँ पे आप डिस्प्ले कर लो, कितना कर रहे थे, AMT, ठीक है कि नहीं। और सेम चीज को यहीं पे यहाँ पे प्रिंट कर लो आप, यहाँ पे विड्रॉल अमाउंट, ठीक, क्लियर है। तो यहां से थोड़ा सा क्लैरिटी आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं, डिपॉजिटिंग अमाउंट, प्रिंट डिपॉजिट, ठीक है। और यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं, विड्रॉल, ठीक, ये हुआ। अब रन करते हैं, देखो डिपॉजिट कॉल हुआ, डिपॉजिट अमाउंट कितना है 2000, ठीक है। और अगर आपको बैलेंस भी यहाँ पे प्रिंट कराना है, बैलेंस भी प्रिंट कराना है, तो उसको भी प्रिंट करा सकते हैं, यार अभी, ठीक है। यहाँ पे बैलेंस अमाउंट, बैलेंस अमाउंट, या फिर बैलेंस अमाउंट में क्या आएगा, BAL आएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे भी सेम प्रिंट करना चाहते हैं, तो ये रहा। तो ये देखो डिपॉजिट, डिपॉजिटेड अमाउंट 2000, बैलेंस अमाउंट कितना है सब 5000, इसको पहले प्रिंट करना पड़ेगा, ठीक है। ऐड करने के पहले प्रिंट कर दो, ठीक है। देखो कोई भी प्रोग्राम एकदम करेक्ट नहीं होता, ठीक है, ट्रायल एरर से ही हिट करते करते ही आपको समझ में आएगा कि कौन से स्टेटमेंट को कहां लिखना है, ठीक है। अब देखो डिपॉजिट करना है, बैलेंस अमाउंट कितना है 5000 रुपए, डिपॉजिट अमाउंट कितना 2000 रुपए, तो अमाउंट कितना बचा 7000। विड्रॉल किया आपने, बैलेंस अमाउंट कितना है 7000, कितना विड्रॉल किया आपने 3000, बचा कितना 4000, ठीक है। अब यहाँ पे जो अपन गंदा वाला काम कर रहे हैं, अगर आपको इससे छुटकारा चाहिए तो क्या करो, कुछ नहीं, एक लूप लगाओ, WHILE, वाइल ट्रू, वाइल ट्रू, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो, प्रिंट, प्रिंट 1 फॉर, डबल कोट्स के अंदर, प्रिंट 1 फॉर डिपॉजिट, डिपॉजिट, ठीक है, क्लियर। और फिर प्रिंट डबल कोट्स के अंदर 2 फॉर विड्रॉल,
सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट प्रिंट, प्रिंट 3 फॉर बैलेंस, ओके, या शो बैलेंस या डिस्प्ले बैलेंस अमाउंट, डिस्प्ले बैलेंस, ठीक, क्लियर। सॉरी, ठीक है, यहाँ डॉट दे दो, दिखने में अच्छा दिखता है, क्लियर है। अब यहां पे यूजर क्या करेगा, कुछ ना कुछ एंटर करेगा, तो आप चॉइस ले लो, एक वेरिएबल चॉइस इक्वल टू इनपुट, ठीक है, ठीक है। सेलेक्ट योर चॉइस, सेलेक्ट योर, सेलेक्ट योर चॉइस, ठीक है। इसको इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंट, ठीक है, ये हुआ, ठीक है ना, ये हो गया। अब क्या, अब क्या करना है, अब चेक करो इफ, ठीक है, इफ चॉइस इक्वल टू 1 है क्या, डबल इक्वल टू से होगा कंपैरिजन, चॉइस डबल इक्वल टू 1 है क्या, ठीक है, सी प्लस प्लस घुस रहा दिमाग में। अगर ये है तो क्या कॉल करना है अपन को, डिपॉजिट वाला फंक्शन, डिपॉजिट वाले फंक्शन का नाम क्या है, डीईपीओ, डीईपीओ फंक्शन को कॉल कर दिए, खत्म, ठीक है। और क्या हो सकता है, एलिफ, एलिफ चॉइस इक्वल इक्वल टू है क्या, अगर 2 है तो विड्रॉल करना है तो विथ को कॉल कर दो, यस और नो, ठीक है। और लास्ट में एलिफ, एलिफ, सॉरी यार जावा बीच में जाते रहता है, ठीक है, CHOIC चॉइस, चॉइस इक्वल इक्वल 3 है क्या, अगर 3 है तो किसको कॉल कर दो, फंक्शन को, कौन सा फंक्शन है, बैलेंस, बैलेंस का फंक्शन का नाम क्या है, बैलेंस फंक्शन डिस्प्ले करने का शो, तो शो फंक्शन को कॉल कर दो, दैट्स इट। एक लास्ट डाल दो, प्रिंट, प्रिंट डबल कोट्स के अंदर 4 फॉर एग्जिट, अब मेरे को कोई बताओ तुम लोग में से कि अगर मान लो मेरे को प्रोग्राम को बीच में टर्मिनेट करना है तो कौन सा फंक्शन यूज करता है, तुम लोग बताओ, लूप को बीच में टर्मिनेट करना हो तो, ब्रेक, यस, एलिफ चॉइस इक्वल इक्वल अगर क्या है 4 है तो क्या करना है, ब्रेक, खत्म, ठीक है, दैट्स इट। रन करके देखे, हो सकता है एरर आए, प्रिंट प्रोग्राम हुआ, देखो सेलेक्ट योर चॉइस आया 1, लेकिन देखो अपन यहाँ गलती क्या की है, कितना अमाउंट डिपॉजिट किए तो अपन प्रिंट ही नहीं किए, आया ना एरर, ठीक है। अब देखो कैसे करते इसको मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे क्या करो, आप करिए एक लोकल वेरिएबल ले लीजिए ए अमाउंट, ठीक है, इंट करिए, ब्रैकेट के अंदर लिखिए इनपुट, इनपुट डबल कोट्स क्या, एंटर अमाउंट फॉर डिपॉजिटेड, डिपॉजिट, ठीक है, एंटर अमाउंट फॉर डिपॉजिट। फिर यहां पे भी क्या करना पड़ेगा, सेम चीज में को यहां पे भी करना पड़ेगा, कितना अमाउंट आपको विड्रॉल करना है,
है कि नहीं। और यहाँ पे जो अमाउंट डिपॉजिट, क्योंकि देखो अमाउंट जो है डिपॉजिट वहां पे पास करना ना, एक वेरिएबल कितना अमाउंट डिपॉजिट करना है, तो वो यहाँ पे पास करना पड़ेगा आपको ए। अब विड्रॉल करना है तो विड्रॉल करने के भी पहले आपको अमाउंट बताना पड़ेगा भी कितना अमाउंट आप विड्रॉल करना चाहते हो, है कि नहीं। तो एंटर अमाउंट फॉर विड्रॉल, ठीक है, ये हुआ। अब यहाँ पे फिर बता दो कितना अमाउंट करना चाहते हो, तो बस हो गया, बन गया प्रोग्राम अपना, ठीक है। एंटर योर चॉइस। 1 बोला डिपॉजिट अमाउंट कितना 2000, देखो बैलेंस अमाउंट 5000 और डिपॉजिटेड अमाउंट कितना है 2000। अब एक काम करते हैं, जब भी बैलेंस डिस्प्ले, जब भी अमाउंट आ रहा है, ठीक है, जब भी अपन ये कर रहे हैं, लास्ट में अपन किसको कॉल करा दो, शो को। मतलब कितना अमाउंट है अपने बैलेंस में, सब होने के बाद कितना अमाउंट आया, उसको तो ये शो फंक्शन कॉल कर देगा। लास्ट में जो अमाउंट है आपके पास शो, और शो फंक्शन में क्या कर दो, प्रिंट कर दो एक्चुअल बैलेंस या फिर बैलेंस इक्वल्स टू, बैलेंस इक्वल टू, ठीक है। क्लियर है, किसी को डाउट है क्या। अबे अटक गया ये तो प्रोग्राम, अरे यार मर जाऊंगा मैं तो। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, देखो ये हुआ, हाँ 1, ठीक है। एंटर डिपॉजिट, ठीक है, इतना 2364, देखो चेंज हुआ। बैलेंस अमाउंट कितना है 5000 पुराना, ठीक है। डिपॉजिटेड अमाउंट कितना, इतना, और उसके बाद कितना हो गया बैलेंस अमाउंट इतना। फिर पूछ रहा सेलेक्ट योर चॉइस, आपको और डिपॉजिट करना है तो फिर से एक दबाइए, है कि नहीं। अब डिपॉजिट अमाउंट समय को करना है कितना 8000 रुपए और डिपॉजिट करना है, तो ये हो गया, फिर डिपॉजिट हो गया अमाउंट, यस सर नो। अब क्या करना है, सपोज आपको देखना है कितना अमाउंट है, विड्रॉल करना है, तो 2 दबाइए, विड्रॉल करना है। एंटर अमाउंट फॉर विड्रॉल, तो कितना 5000, 5000 विड्रॉल करना है मेरे को, यस सर नो। 15000 हो गया क्या, नहीं 5000। अब देखो कितना बचा, है कि नहीं, देखो 5000 निकला ना, देखो 15000 हो गया था। अब आपको सिर्फ सपोज डिस्प्ले करना है, 3 दबाइए, अमाउंट डिस्प्ले हो गया, ये देखो बैलेंस अमाउंट एक 10,334। अब सपोज आपको प्रोग्राम खत्म करना है तो टर्मिनेट कर दो प्रोग्राम को, प्रोग्राम ओवर, खत्म। आया समझ में। तो ऐसे होता है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। किसी को डाउट है आज के प्रोग्राम में, हेलो हेलो, नो सर। नो सर। तो आप एक